وجہ سے ڈیر اسماعیل خان کو چھوڑ کے بشیر آیا ہے، وہ بندہ میرا ذاتی جاننے والا ہے۔ این پی کے امیدوار سردار رشید خان ناصر جو کہ این پی اسی حلقے پہ قومی اسمبلی پہ امیدوار ہے، اس کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ ان کی سیاسی جدوجہد بھی میرے قابل بہت کمزور ہے، اس کا کردار بھی مجھے پتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ پی بی 49 پہ سید جمال عبدالناصر آغا کے حق میں دستبردار ہو رہا ہے۔ تب میں پچھن کی بات کروں گا، پارٹیوں کے اندر کروڑوں روپے کی ٹکٹیں بکی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے اتحاد کے حوالے سے پشین کی سطح پہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ فائنل کر لی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بھی جا کے مزید بھی اس حوالے سے قلعہ عبداللہ، چمن اور کوئٹہ کی سطح پہ اس کو مزید آگے بڑھائے۔ فی الحال پشین کی سطح پہ NA 265 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ میں بذات خود خیر محمد ترین جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو میں حلقہ NA 265 پشین سے ANP کے امیدوار سردار رشید خان ناصر جو کہ ANP اسی حلقے پہ قومی اسمبلی پہ امیدوار ہے، اس کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ اور اسی طرح حلقہ PB 49 پشین 3 وہاں پہ ANP کا کینڈیڈیٹ اصغر علی ترین پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ PB 49 پہ سید جمال عبدالناصر آغا کے حق میں دستبردار ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح حلقہ PB 48 پشین 2 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بی بی کوثر ANP کے 248 پشین 2 پہ جناب عبید اللہ عابد کے حق میں دستبردار ہو رہی ہے۔ تو ڈسٹرکشن کی سطح پہ اور پورے صوبے کی سطح پہ مختلف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوئے تھے، تو پشین کی سطح پہ بھی ہمارے مختلف آل پارٹیز والوں کے ساتھ اجلاس ہوئے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے تھے۔ تو پھر بعد میں ہماری پارٹی کی ضلعی قیادت اور صوبائی قیادت نے یہ تجویز کیا کہ ہم ضلع پشین میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارے نظریاتی طور پہ ہمارے بہت قریب ہے، اور گزشتہ الیکشنوں میں ہمارے چھوٹے صوبوں کے جو بڑے بڑے مسائل تھے، خصوصاً ہمارے صوبے کو مکھمہ کا نام دینا، کالا باغ ڈیم کو دفن کرنا، بادشاہ خان کے نام سے ایئرپورٹ نام کرنا، یہ سارے جو FC ایوارڈ تھے، 18ویں ترمیم تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی اتحاد کے بدولت ممکن ہوئی۔ تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے جانے کے بجائے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کو ترجیح دیں گے۔ تو اس ترجیح کے بدولت پھر ہمارے 5-6 میٹنگ ہوئے ضلع کے سطح پہ، بعض میٹنگیں ہماری صوبائی پارٹی اور پیپلز پارٹی کے صوبائی قیادت کے درمیان بھی ہوئی۔ آج بھی یہ پیپلز پارٹی کے صوبائی قائدین نے کرنا تھا، وہ سب اپنے اپنے حلقوں میں مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے، تو ہم لوگوں نے یہ ضلع پشین کا جو اتحاد تھا اس کا اعلان کیا۔ اس پہ ہمارے ایک جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اور ایک جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ودرا ہوئے ہیں، اور ایک صوبائی اسمبلی پہ جہاں پہ ان لوگوں کے کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اس پہ ہم لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ودرا کیا، اور باقی پورے ضلع پشین پہ یہ ہم لوگوں کی حمایت کریں گے، اور ہم پورے اس حلقے پہ جس حلقے پہ ان لوگوں کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا ہم بھرپور تعاون کریں گے، بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس کے جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جتنے اپنی پارٹی کے امیدوار کے لیے ہم لوگ تربدو کرتے ہیں، اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم اتحاد میں ان لوگوں کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کریں گے۔ تو انہیں چند گزارشات کے پاس ہم لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ بنیادی بات ہم چونکہ آج پریس کلب آئے ہیں تو اس اتحاد کے اعلان کی آڑ میں ایک بات کریں کہ ملک میں جو تشدد کی نئی لہر اٹھی ہے، اور اس تشدد کی لہر کو بنیاد بنا کے بعض قوتیں الیکشن کو پسپون کرنے کے عربے کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم اس کی بہت بھرپور مخالفت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہر حال میں اس ملک میں جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں پہ ہمارے الیکشن کمیشن کی جو
कमज़ोर फैसले हैं और हमारे जो आरोज़ है, हमारे जितने भी लोग हैं, हम उससे एक मुतालबा करेंगे कि खुदा हमें साफ और शफाफ इंतखाबात दिए जाए। हमारे यहाँ बहुत यानी पार्टियों के अंदर, ख़ुसूसन मैं पिछले की बात करूँगा, पार्टियों के अंदर करोड़ों रुपए की टिकटें बिकी हुई है। यहाँ पे हम कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा करोड़ रुपए पे पार्टी के टिकट ले ले और बाद में वो साफ और शफाफ इलेक्शन का वो करे। हम इन चीज़ों को इंतजामिया के नोटिस में भी लाते हैं, इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी लाते हैं कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है। हमारे बाज़ इतनी बड़ी बड़ी वाक़यात हुए ख़ुसूसन ज़िला बशीर में कि उसको बेस बना के हमारे बशीर में अमन व अमान की हालात को ख़राब किया जा रहा है। तो हम इस सिलसिले में आपके तवसत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पूरे अभी जो निगरान सेटअप है या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी है, उससे मुतालबा करते हैं, लॉ एनफोर्सेस एजेंसियों से मुतालबा करते हैं कि हमें साफ और शफाफ इंतखाबात कराने दिए जाए। नहीं जी, हमने पहले ही इसकी वजाहत कर दी कि सूबाई सतह पे हमारे 3-4 बल्कि 5 सेशंस हुए, ज़िली सतह पे भी हुए। हमारे सूबाई कायदीन ने आना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे साथ शिरकत करनी थी। चूँकि इलेक्शन की मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पे ना आ सके, तो पूरी पार्टी फैसला, ये हमारे इंडिविजुअल अपनी ज़ाती फैसले नहीं है और ये पार्टी फैसले जो हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं। हमारी तो कोशिश ये रही है कि हम बशीर की सतह पे ग्रैंड अलायंस की भी हमने कोशिश की कि एक मुश्तरका तौर पे इलेक्शन के अंदर जाके मुकाबले की। और दूसरी जो किला अब्दुल्ला और चमन की बात करें, हमने पहले ही बता दिया था कि हमारी सूबाई लेवल पे कोयटा के ऊपर भी, किला अब्दुल्ला के ऊपर भी, चमन के ऊपर भी मुज़ाकरात चल रहे। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी किसी नतीजे पर पहुँचेगी, इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करेंगे। वो हमने कोशिश की ज़िला बशीर की हद तक कि आल पार्टीज़ बुला लें और तमाम पार्टियों को एक पेज पे ला के बशीर में इलेक्शन करें। तो कल ही हम लोगों ने बादशाह मरकज़ बशीर में तमाम पार्टियों का इजलास तलब किया था, जिसमें सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई पार्टी वहाँ पे हाजिर नहीं हुई। जिस पूरे बशीर की इत्तेहाद का हमने इजलास बुलाया था, हर पार्टीज़ सबको दावत तामीन दिए थे, सबको इन्फॉर्म किया था। उस इजलास में कल 5 बजे हमारा बशीर में वो हुआ था, उसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाजिरी दी। उसी हाजिरी के नतीजे में हमारे लोगों के साथ पहले भी मुज़ाकरात जारी थे और इसी वजह से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अब हमने फैसला किया जो आज आपको इलेक्शन साफ शफाफ कभी हुआ है? कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन हम तो मुतालबा करते हैं कि हम बोलते हैं कि जो आइन में दर्ज है, इलेक्शन कमीशन के जो पार्टियों के हकूक़ दर्ज है, कैंडिडेट के हकूक़ है, प्लानिंग के हकूक़ है, जितने भी आइन में है, हम तो कहते हैं जब से मुल्क बना है हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो भी जीते लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए जीते। हम तो ये नहीं कहते कि जो भी करता है, जो भी कुव्वत करती है ताजली, जिस शक्ल में भी करती हो, जिस अंदाज से भी करती हो, वो काबिल गिरफ्त है और उसकी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की है। हम तो मुतालबा कर सकते हैं कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। पार्टियों के अंदर जब टिकटें जो पार्लिमानी बोर्ड देती है, ठीक है, उसी पार्लिमानी बोर्ड को वहाँ पे इलेक्शन कमीशन नहीं होती है। पार्लिमानी बोर्ड को अनबोर्ड रखना होता है कि भाई मैंने कहा कि हमारी पीपल्स पार्टी के साथ कल तक 6 मीटिंग हुई, 3 सूबाई सतह पे, 3 ज़िली सतह पे। यानी 6 मीटिंगों के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हमारे ज़िले की आदत और सूबाई की आदत। मैंने वजाहत की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपने हाथों में मसरूफियात की वजह से हमारे सूबाई सदर साहब चमन में थे, इन लोगों के सूबाई सदर साहब कोयटा से बाहर थे। तो इस वजह से उन लोगों ने हमें फ़ोन किया कि आप लोग जाए अपने जो इत्तेहाद है उसको अनाउंस करें। ये भी अपनी पार्टी का डिविजनल सदर है, मैं अपनी पार्टी का मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, मेरे साथ ये सैयद शाहजहां आगा बैठे हुए, ये मेरे ज़िले के जनरल सेक्रेटरी है। तो इनके सारे जो उहदेदार है पार्टी के सूबाई कैबिनेट के उहदेदार है। जरूरी तो नहीं कि एक फर्क पार्टी होती है, पार्टी तो एक सिस्टम है, एक मशीनरी है। मैं खुद पार्टी के मरकजी कैबिनेट का बंदा हूँ, ठीक है, मैं उम्मीदवार भी हूँ, लेकिन ये पार्टी के डिविजनल सदर है, ये हमारे ज़िले जनरल सेक्रेटरी है। ये हम नहीं तो चोरी का काम नहीं कि हमने अनाउंस किया पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया हो। तो पार्टी हमारे इत्मीनान में हम लोग इंशाल्लाह हमने कोशिश भी की। हमारे पास बहुत लोग आए चोर दरवाजे से, क्या एहतियात करते हैं हम, चोर दरवाजे वाले एहतियात। हमने उन सबको कहा कि हम आ जाए, बादशाह मरकज़ में बैठते हैं, सारी पार्टियाँ सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने कौन होता है,
जब कल हमने इजलास बुलाया कोई पार्टी नहीं आई, एक पीपल्स पार्टी आई, उस पीपल्स पार्टी के साथ हमने अपना इत्तेहाद कायम किया और ये आप लोगों के सामने अनाउंस किया। अगर उस पर कल कोई इतराज़ पार्टी की तरफ से आया फिर हम लोग मुजरे में शाह साहब इस तो हम लोग पार्टी का है। ये बड़ा लीडर झूठा लीडर, मैं तो कहता हूँ कि ये बंदा जिस बंदे की वजह से डेढ़ सौ खां को छोड़ के बशीर आया है, वो बंदा मेरा ज़ाती जानने वाला है, गंडापुर जो है। उनकी सियासी जदोजहद भी मेरे काबिल में बहुत कमज़ोर है, उसका किरदार भी मुझे पता है कि उनके जब एक बंदा, ये तो पब्लिक का काम है कि कौन बड़ा लीडर है, उसको शिकस्त हो सकती है नहीं हो सकती है। हमारा तब तो पार्टी ने हिदायत की कि आप हमारे उम्मीदवार हो, मैंने जाके मैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट हूँ, ये तो पब्लिक का काम है। बड़ी लीडर को वोट देते हैं, छोटे लीडर को देते हैं, हम तो अपने उसूल कानून उस पर पाबंद है कि पार्टी ने हमें कैंडिडेट खड़ा किया है कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़े, हम तो मजबूर इलेक्शन लड़ेंगे जितना भी बड़ा लीडर। हाँ, लेकिन एक सवाल है इस बड़ी लीडर के लिए, मैं जिस पार्टी से हूँ उस पार्टी की एक हिस्ट्री है, उसूल है। हमारे पार्टी के कायद खान अब्दुल खान 5 दफा 50 सदस्य को असम्बली के रुकन बने, छठी दफा उसको हमारे इस्टेब्लिशमेंट में हमारे जो मजहबी कुव्वतें हैं, हमारे जो नामनियात इनकलाबी है, इन सब ने इकट्ठे होकर उसके साथ उसके खिलाफ इत्तेहाद कायम किया, उसको मुझे संजान से हराया। जिस दिन वो इलेक्शन में आ गया उस दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बोलता है मैं एक ऐसा बासूर बंदा हूँ, इसका मिसाल कोई यूरोप में भी नहीं दे सकता है, लंदन में भी नहीं, अमेरिका में भी नहीं दे सकता है इसका मिसाल जो खान अब्दुल खान किया। हम उसके पैरोकार। तो वली खान ने कहा कि मैं चूंकि एक ज़िले के लोगों ने मुझ पर इत्मीनाद नहीं किया, लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान के पार्टी का प्रेसिडेंट किस तरह हूँ, मैं पार्टी सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं 3 रुपये के। अभी दूसरा, इस बंदे के बड़ी लीडर का ये उसूल है कि मैं इस्माइल खान में आ रहा हूँ, मुझे कहा असम्बली में जाना है और जाना है जाके पीछे से मैंने मुंतखब बनना है। अभी आप खुद इसकी सियासी अखलाकियात का अंदाजा लगाओ। लीडर बड़े किरदार से बनते हैं, लीडर बड़े उसूल से बनते हैं, लीडर बड़े कानून से बनते हैं, इससे नहीं बनते कि जिसकी वही काम है तो जाके अभी जो लोग पीछे, मुझे पता था कि टैक्सी स्टैंड में गाड़ियाँ साफ करते थे, उन लोगों के पीछे अभी 10-10 गाड़ियाँ फिर रही है, तो उसको भी कल आप लीडर बोलेंगे। लीडर किरदार से बनते हैं, लीडर उसूल से बनते हैं। हम उस उसूलों के पासिबान हैं, जिन उसूलों को बादशाह खान है, जिन उसूलों को वली खान है, हमको सिखाया था, हम उसी पे खड़े, कल भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।